So, good morning, students. Today we will start the remaining part of the chapter number 5, the 100 dresses part first of remaining part. The chapter is written by Els or Esther. So, see page number 67, third paragraph. Today even though, यहाँ से देखेंगे आप today even though. आज हालांकि they had been late to school, उन्हें विद्यालय पहुंचने में देरी हो गई थी. मैडी was glad, मैडी बहुत खुश थी. That she had not had to make fun of वेंडा, कि उसे आज वेंडा का मजाक नहीं बनाना पड़ा था. She worked her arithmetic problems absent-mindedly, वह बिना ध्यान दिए गणितीय समस्याओं को हल कर रही थी. At times at let's see, she wished, उसकी इच्छा थी. She had the nerve to write Peggy a note, कि वह कष्ट करे थोड़ा सा पैगी को एक नोट लिखने के लिए. Because, क्योंकि she knew, वह जानती थी, she never would have the courage to speak right out to Peggy, वह कभी हिम्मत नहीं कर पाएगी पैगी से स्पष्ट रूप से कहने के लिए. Hey Peg, let's stop asking Wenda how many dresses she has, कि वेंडा से पूछना बंद करे कि उसके पास कितनी पोशाकें हैं. When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy, जब उसने अपनी गणितीय समस्या समाप्त की तो उसने पैगी के लिए एक नोट लिखना शुरू किया. Suddenly she paused and shuddered, अचानक से वह रुकी और थोड़ा हिचकिचाई. She pictured herself in the schoolyard, उसने अपनी तस्वीर देखी स्कूल यार्ड में. A new target for Peggy and the girls, पैगी और अन्य लड़कियों के लिए एक नया टारगेट था. Peggy might ask her where she got the dress, पैगी पूछेगी उससे कि उसने वे पोशाकें कहाँ से प्राप्त की थी. That she had on, जो उसके पास थी. And Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones, और मैगी को कहना था कि पैगी की पुरानी ड्रेस है. That Maddie's mother had tried to disguise, जिसे मैडी की माँ छुपाने की कोशिश कर रही थी. With new trimmings, नई थोड़ी सी ट्रिम करके. So no one in room 13 would recognize it, ताकि रूम नंबर 13 में उन पोशाकों को कोई पहचान ना पाए. If only Peggy would decide of her own accord, only Peggy decide करेगी अपने अनुसार to stop having fun with Wenda, कि वो उसके साथ मजाक करना बंद कर दे. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair, और मैडी अपने हाथों को घुमाती है उसके छोटे छोटे पीले बालों में. As though to push to uncomfortable thoughts away, जैसे कि वह कुछ uncomfortable thoughts को, विचारों को दूर करना चाहती हो. What the note she had, what difference did it make, इस कारण से क्या परिवर्तन हुआ. Slowly Maddie tore into bits the note, धीरे से मैडी ने जो नोट लिखा था उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए. She had started, जो उसने लिखना शुरू किया था. She was Peggy's best friend, वह पैगी की सबसे अच्छी सहेली थी. And Peggy was the best liked girl in the whole room, और पैगी उस पूरे कमरे में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी. Peggy could not possibly do anything, पैगी ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी. That was really wrong, जो बिल्कुल गलत हो, she thought, उसने सोचा. As for Wenda, जहाँ तक कि वेंडा का सवाल था, she was just some girl who lived upon Boggins Height, वह एक ऐसी लड़की थी जो बॉगिन्स हाइट में रहती थी. And stood alone in the schoolyard, और विद्यालय के आंगन में अकेली खड़ी हुई थी. She scarcely ever said anything to anybody, उसने शायद ही कभी किसी से कुछ कहा था. The only time she talked, केवल एक ऐसा समय आता था जब वह बातें करती थी, was in the schoolyard about her 100 dresses, वो एक ऐसा समय था जब वह अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में विद्यालय के आंगन में खड़े होकर बातें करती थी. मैडी remembered her, मैडी उसे याद दिलाती है. Telling about one of her dresses, उसकी एक पोशाक के बारे में. Pale blue with colored trimmings, and she remembered another that was brilliant jungle green, दूसरी पोशाक की याद दिलाती बिल्कुल हरे भरे रंग की. With a red squash, लाल रंग के छींट वाली. You would like a Christmas tree in that, तुम उसमें एकदम क्रिसमस ट्री जैसी दिखाई देती हो. The girl had said in pretended admiration, लड़कियों ने बनावटी प्रशंसा करते हुए कहा. Think about Wenda and her 100 dresses all lined up in the closet. वेंडा और उसकी 100 पोशाकों के बारे में सोचो जो अलमारी में एक कतार में रखी हुई हैं. मैडी began to wonder, मैडी को आश्चर्य होना शुरू हो गया. Who was going to win the drawing, कि ड्राइंग कौन जीतेगा. एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट फॉर गर्ल्स,
दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस, और इस कॉन्टेस्ट में लड़कियों के लिए डिजाइनिंग ड्रेसेस बनाना शामिल था, एंड फॉर बॉयज, और लड़कों के लिए ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, निश्चित रूप से पैगी ही लड़कियों का मेडल जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, पैगी अन्य लड़कियों की तुलना में अच्छे ड्रेसेस बनाती थी, ड्रू करती थी। एट लास्ट दैट वाज एवरीबॉडीज थॉट, एटलीस्ट कम से कम सभी लोगों की यही सोच थी। शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन ए मैगजीन, वह किसी भी मैगजीन से पिक्चर की कॉपी कर सकती है। सम फिल्म स्टार्स हैड, किसी भी फिल्म स्टार का चेहरा बना सकती है। सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज, ताकि आप लगभग ये बता सकें कि वह कौन था। ओ मैडी वॉज श्योर, मैडी बिल्कुल सुनिश्चित थी, पैगी वुड विन, कि पैगी ही जीतेगी। टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर, कल टीचर विनर्स का नाम अनाउंस करने जा रही है। दे वुड नो, तभी उन्हें पता चलेगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, अगले दिन हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरिड टू स्कूल, मैडी और पैगी को जल्दी थी स्कूल जाने की। अंडर पैगीज अम्ब्रेला, पैगी के छाते के नीचे। नेचुरली ऑन डे लाइक दिस, स्वाभाविक रूप से इन दिनों में, दे डिडंट वेट फॉर वेंडा, वे वेंडा का इंतजार नहीं करती थी पेट्रॉन्स की। ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बॉगिन्स हाइट। एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, आज वे देरी उठाने का कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, क्या तुम सोचती हो कि मिस मैसन आज विनर्स का नाम अनाउंस करेंगी? आस्क्ड पैगी, पैगी ने पूछा। ओह आई होप सो, अरे हाँ मुझे ऐसी ही उम्मीद है। द मिनट वी गेट इन, जैसे ही हम वहाँ प्रवेश करते हैं। सैड मैडी, ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, निश्चित रूप से पैग तुम ही जीतोगी। होप सो, ऐसी उम्मीद करती हूँ। सैड पैगी ईगरली, पैगी ने भी उत्सुकतापूर्वक कहा। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम, जिस क्षण उन्होंने क्लासरूम में प्रवेश किया, दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड, वे बीच में रुकी और हाँफने लगी। देयर वर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम, चारों तरफ कमरे में ड्राइंग सी लगी हुई थी। ऑन एवरी लेज, प्रत्येक किनारे पर, विंडो सिल, खिड़की की चौखट पर, डैजलिंग कलर्स, चमकीले रंग, ब्रिलियंट लैविश डिजाइन, ऑल ड्रॉन ऑन ग्रैंड शीट ऑफ रैपिंग पेपर, सभी रैपिंग पेपर की बड़ी बड़ी शीट पर लगी हुई थी। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, लगभग 100 से भी ज़्यादा, सभी एक कतार में। दे मस्ट अप बी द ड्राइंग फॉर द कॉन्टेस्ट, शायद वे कॉन्टेस्ट के लिए रखी गई थी। देयर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मरमर्ड एडमायरिंगली, सभी लोग रुकते थे, सीटियाँ बजा रहे थे और मन ही मन प्रशंसा कर रहे थे। As soon as the class had assembled, जैसे ही पूरी क्लास असेंबल हुई, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स, मिस मैसन ने विनर्स का नाम अनाउंस किया। जैक बैगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज, लड़कों का जो अवार्ड था वो जैक बैगल्स ने जीता। शी सैड, एंड हिज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज एन एग्जीबिशन इन रूम 12, और उसने जो मोटर बोट जो बनाई थी आउटबोर्ड की, उसकी एग्जीबिशन रूम नंबर 12 में लगी हुई है। अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज, अन्य सभी लड़कों के द्वारा बनाए गए स्केचेस के साथ। एज फॉर द गर्ल्स, जहाँ तक कि लड़कियों का सवाल है, शी सेड ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट वन गर्ल, ज़्यादातर लड़कियों के द्वारा 1 या 2 स्केचेस सबमिट किए गए थे। एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, रूम नंबर 13 को उस पर गर्व होना चाहिए। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइंस, इस लड़की ने 100 डिजाइंस बनाई हैं। ऑल डिफरेंट, सभी अलग अलग हैं। एंड ऑल ब्यूटीफुल, सभी सुंदर भी है। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, इनमें से कोई सी भी जो ड्राइंग है वो पुरस्कार के योग्य है। आई एम वेरी हैप्पी टू से, और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, दैट वेंडा पेट्रोन्स्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, गर्ल्स मेडल की जो विजेता है वो वेंडा पेट्रोन्स्की है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, वेंडा हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज, वेंडा पिछले कुछ दिनों से स्कूल से एब्सेंट है। एंड इज नॉट हियर टू रिसीव द अपलॉज दैट इज ड्यू टू हर, और इन अपलॉज को रिसीव करने के लिए नहीं है जो उसके कारण बजाई जा रही हैं। लेट्स होप शी विल बी बैक टुमारो, चलो उम्मीद करते हैं कि कल वो वापस लौट आए। नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली, अब आप इधर उधर कमरे में घूम सकते हैं चुपचाप से। एंड लुक एट हर एग्जीक्यूट ड्राइंग्स, और उसकी बहुत ही बेहद खूबसूरत ड्राइंग्स को आप देख सकते हैं। द चाइल्ड बर्स्ट इनटू अपलॉज,
बच्चों ने जोर जोर से ताली बजाना शुरू किया. एंड इवन द बॉयज वर ग्लेड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर. पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स. उन्होंने अपनी उंगलियां अपने मुंह में रखी. एंड विसल, सीटियां बजाई. दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस. हालांकि उनकी कोई रुचि नहीं थी ड्रेसेस में. लुक बैक विस्पर्ड मैडी. मैडी बोली, देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट. ये देखो वो नीली वाली पोशाक जिसके बारे में वो हमें बताती थी. इजंट इट ब्यूटीफुल. क्या ये सुंदर नहीं है? यस, हाँ, सैड पैगी. पैगी ने कहा. एंड हियर इज दैट ग्रीन वन. और ये हरी वाली लड़के. आई थॉट आई कुड ड्रॉ. मैं सोचता हूँ मैं भी बना सकता हूँ. सो दिस इज द chapter number 5. If you have any doubt or confusion in this chapter, then you can ask me. In the next video we will discuss a new chapter with chapter number 6, the 100 dresses part 2nd. Till then, thank you very much.